Hello guys, good evening. Okay, there's no one in the class right now. Let me just quickly circulate a message about the class in my Telegram channels and groups. Just a second, I will just start. No one है. I think जो recording देख रहे हैं बस उनके लिए मैं बोल रहा हूँ मैं. थोड़े टाइम में चालू कर रहा हूँ. Just circulating a message in multiple groups, getting people into the class. Right, I'm just adding the slides of the class over here. Okay, I'll just go through the introductory slides and then we'll see how we'll go through the session once people are in. Right. Uh, Let me just give you guys a brief introduction about myself. My name is Suneet Kumbhat. I've done my engineering from IIT Delhi, my MBA from IIM Calcutta. In between, I kept taking the cat over and over again. Aditya, welcome to the class. If you can chat with me, just give me a hi. Ayush, Aditya, both of you. Hi, perfect. So guys, देखो title तो है कि यार CAT preparation with or without a job, right? But if there's anything else also you want to ask me, you can ask me because today I've kept these extra sessions just to help students who have any questions around CAT, around prep, around any section, around any question, around B schools, around management streams, jobs, लाइफ एनीथिंग कुछ भी इंटरव्यूज ग्रुप डिस्कशन कुछ भी पूछना है आप मुझसे चैट में पूछो मैं आपको जवाब देते रहूंगा पहले मैं बस अपने क्रेडेंशियल्स एस्टैब्लिश कर देता हूं सो दैट यू अंडरस्टैंड कि आप मुझसे क्या क्या चीजों पे आपको अच्छी नॉलेज मिल सकती है तो जैसे मैंने कहा आई डिड माय इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी दिल्ली I took the CAT 4 times when I was a student, right? So I always used to score more than 99 percentile, but somehow I did not get through to any of the top B schools in the country. And I said top B schools, my target was the old IIMs, primarily IIM Ahmedabad, Bangalore, and Calcutta. Mudit, welcome to the class. Right, so I was not being able to get through to any of these B schools, and I was taking the CAT over and over again. I think this session is hence very relevant coming from me. CAT preparation with or without a job. I always had a job or a startup, right? So for 1 year, I did a job after my graduation.
And for the other 2 years, I had a startup of my own where I was working around 15 to 16 hours a day, most of the times of the year, except like a couple of months before CAT, where I used to limit it to around 8 months and 4 months as well, in the last few weeks, right? Sorry, 4 months, bol wrong. 8 hours a day or 4 hours a day, right? In the last few weeks, I used to just do 4 hours a day of preparation. Sorry, preparation bol wrong, work, है ना? तो ऐसा सब मैंने किया हूँ. So yeah, that is a bit about me. In my fourth attempt at CAT, finally I happened to score 100 percentile. ठीक है, एक 100 percentile आने के बाद ऑब्वियसली आपको बहुत सारे कॉल्स आ जाते हैं, मुझे भी बहुत सारे बी स्कूल्स के कॉल आए और फाइनली आई वेंट टू IIM Calcutta. आई थिंक two of the best days of my life, best B school I could go to. I had always targeted IIM Calcutta. मेरे पास अकेडम्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो मेरे लिए IIM Calcutta बहुत ही ज्यादा वायबल ऑप्शन था. And I finally happened to reach there as well. So I went to IIM Calcutta 2014 to 2016. Post that, I did not take up a job. I wanted to do something of my own. So, I first of all started teaching. And पढ़ाना शुरू किया. तो पिछले 6 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ. I started as a passion. It started as a passion profession where I used to just teach a few hours every week. Just used to take one batch throughout the year and just try to guide around 25-30 students. And then slowly, steadily, that increased to 50, 100, 200, 500, right? So every year I address more than 1,000 students now. So it's been a great journey. Apart from that, I also have a startup of my own. It's called Kasakai Mumbai. I am looking to, in fact, hire people to help me with my teaching profile, to help me with my startup as well, right? तो ये सारी चीजें हैं. इसके अलावा मैं एक और स्टार्टअप में भी एक छोटा स्टेक होल्डर हूँ. एक और स्टार्टअप में मैं काम करता हूँ, right? Which I started 6 months ago, right? So there are multiple things that I'm up to right now. So this is my background, right? My subjects are quants and logical reasoning and data interpretation. Post my MBA, when I started teaching, I thought, yeah, why don't I take the test every year just to understand how the test is like, to research about the test. I think one of the best decisions because, it helps me in my teaching quite a lot, right? So over the last 5 odd years, I've taken the CAT and I've scored 100 percentile over there as well a few times, with 100% scores in LRD a couple of times as well, right? So that is a bit about me. My most favorite important session, one which I advise all students to attend, is my live test taking session. It is my USP where I take a test live in front of all of you. I generally do this on YouTube on the Unacademy Catalyst channel. Okay? And that is going to be the plan this year as well. I'm going to be taking such sessions this year too. Right, so you can join in over there and see how I take a test, how I react to different situations. It is definitely going to help you in your test taking strategies as well, right? So looking forward to have you guys over there as well. I've seen in the past that students who attended this session, exactly after the session, the next mock that they take, they generally have an increase in their score by about 20% marks, right? 10 to 20% marks. So ये सेशन जरूर से आप अटेंड कीजिए, भले आप मुझसे एलआरडी अकाउंट सीखे नहीं सीखे. चलिए एक बार आगे बढ़ते हैं. मैं थोड़ी चीजें आपको और बता देता हूँ. तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल फॉर 8 months. 6 months के ऊपर 2 months एक्सटेंशन मिल रहा है. 8 months की आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फॉर 25,200. ठीक है. देयर इज अ प्राइस हाइक ऑन June 1st, so please get this subscription going for yourselves before that, right? There is an iconic batch which is being started by Ravi Prakash sir. 100 seats only. Do join in before the price hike. Right, so प्राइस हाइक से पहले आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ये रेट्स पे मिलने वाले हैं. एंड इसके ऊपर 10% डिस्काउंट आप अगर मेरा कोड यूज करोगे सुनीत 100. ठीक है, दैट इज व्हाट माय कोड इज सुनीत 100. इफ यू यूज दैट कोड टू सब्सक्राइब यू विल गेट इट एट दिस पर्टिकुलर वैल्यू. ठीक है, ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. सिमिलरली सुनीत 100 से आपको 10% डिस्काउंट प्लस सब्सक्रिप्शन में भी मिलेगा. So use the code and subscribe to Unacademy, right? It's the right time to start CAT preparation. I think इसके बाद थोड़ा difficult हो जाएगा. Generally, June is like the last year time to
Just a second, guys. Yes, I was saying June is like the last time after which CAT preparation चालू करना थोड़ा सा तकलीफ का काम हो जाता है. तो do join in guys. स्टडी मटेरियल भी हमने दिया हुआ है, तो आप वो स्टडी मटेरियल भी यूज कर सकते हो अपने प्रिपरेशन के लिए. This is a list of students who've done exceedingly well in the CAT last year. ठीक है. We're hoping a lot of you are on this list in the next year's results too. Every few days we start with a new batch. Target CAT 22 starts on June 1, right? Day after tomorrow. We have lots of educators in this batch teaching, so do join in over here. प्लस एंड आइकॉनिक के फीचर्स है. आइकॉनिक में प्लस के भी सारे फीचर्स होते हैं. डिजिटल नोट्स, एक्सेस टू क्लासेस, बैचेस, कोर्सेज, इंटरेक्टिव लाइव सेशंस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं, पीडीएफ आपको हर एक क्लास के बाद अवेलेबल रहती है, ओपन हाउस होता है, कम्युनिटी होती है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस. ठीक है. आस्क अ डाउट फीचर, रेज एंड हैंड फीचर. उसके अलावा आइकॉनिक में आपको डिजिटल के साथ साथ फिजिकल नोट भी मिलते हैं, जीडी, पीआई, वैट प्रिपरेशन, लाइव मेंटोरिंग. उसमें आपकी डाउट सॉल्विंग, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, टेस्ट एनालिसिस, ये सारी चीजें होती है. डिस्कॉर्ड की भी कम्युनिटी आपको एक्सेसिबल रहती है स्टूडेंट्स की, तो आपको हर लेवल पे हर टाइम पे कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलते रहता है. ठीक है. महाराष्ट्र एमबीए सीईटी की भी प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं. 2 महीने की प्रिपरेशन पे 1 महीना फ्री, राइट. तो आपको 5000 की चीज 3000 में मिल रही है फॉर 3 months, राइट. सो यू कैन एस योर महाराष्ट्र एमबीए सीईटी एग्जाम्स विद अस. एंड देयर इज एनसीएच एमसीटी जेई 2022, 1 महीने की सब्सक्रिप्शन फॉर 2000 रुपीज. सो यू कैन सब्सक्राइब हियर एज वेल एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन. चलिए, अब आपके सवाल जवाब की बात हो गई है. मुदित, आप भी एक क्लास में, आपको भी मुझसे कुछ चीजें पूछनी थी. आइए बात कीजिए. तो आज का टॉपिक है कैट प्रेप विथ और विदाउट अ जॉब. ठीक है. आई गेट अ लॉट ऑफ दीज क्वेश्चंस एवरी ईयर. इन फैक्ट जस्ट a few days ago, just a couple of days ago, I was talking with a student, again same dilemma. Should I take a job, should I not take a job? I'm going to start my CAT preparation right now. I'm just about to graduate, 5 months there, 6 months there till the CAT. How should I go about it? Right? That was the question from the student कि यार job करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. How do I do this? Now obviously मल्टीपल आंसर्स टू ईच देयर ओन, राइट. हर एक बंदे की सिचुएशन अलग है और उसके हिसाब से ही आंसर दिया जा सकता है. ठीक है. तो अगर आपके भी सेम सवाल है तो आपसे मैं और सवाल जवाब करके आपको हेल्प कर सकता हूँ. पर बहुत, अगर मैं जेनरिक तरीके से आपको बताऊं, एक जेनरिक जवाब दूं, तो मेरे हिसाब से आई वुड ऑलवेज इन 90% ऑफ द केसेस आई वुड ऑलवेज से यार डू योर प्रिपरेशन विथ अ जॉब. It is basically a kind of a backup. It is a plan B. If anything goes wrong, at least you know you have certain experience under your belt. You've been earning, right? All those things help. Kunal, welcome to the class. ठीक है. So very generic idea if I give to you, I would always say do your CAT prep with a job rather than without a job. It is always going to be beneficial that ways for you. ठीक है. Now, Mudit, are you there in the class? Can you give me a hi? मैं इस पे और थोड़ा सा आपको elaborate करता हूँ. Just give me a moment. I'll just get myself some water and just, you know, a lot of dryness over here. I'll just be back. Take a second. Yes, I'm back. So sorry, guys.
ओके सो या लेट मी जस्ट पहले थोड़ा इसके ऊपर मैं और बात कर लेता हूँ. मुझे फिर आपसे थोड़ी बात करनी है. लास्ट 5 to 10 minutes ऑफ द क्लास विल टॉक. ठीक है ना. Generally 90% of the cases, as I said, I generally advise students to do this. But there are 10% of the cases where I even advise कि यार आप अभी जॉब नहीं लो, आप पहले अपनी प्रिपरेशन कर लो. या एक थोड़ा हाइब्रिड मैं बोलता हूँ कि यार आप अभी एकदम है ना आप नहीं करो जॉब, उसके बाद आप पहले थोड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो और उसके बाद आप अपनी जॉब चालू करो. राइट. तो मैं ये भी एडवाइस करता हूँ कई सारे स्टूडेंट्स को. ठीक है. So my reason now, I'll tell you my reason why it varies from person to person is because there are students who are very disciplined, who are hardworking, ठीक है, who do not need an extra push कि हाँ पढ़ाई करनी है. ठीक है, वो लोग कर लेते हैं अपने आप से. ऐसे स्टूडेंट्स को मैं जनरली विदाउट अ जॉब एडवाइस करता हूँ. आप देख लीजिए रेशियो देख लीजिए. आउट ऑफ 10 देयर इज ओनली 1 स्टूडेंट जिसको मैं बोलता हूँ कि यार आप बिना जॉब के कर लो. संकल्प अभी मेरा डीएलआर का चल तो रहा है यार एक कोर्स. there's a plus course for DLR which is already happening. आज शाम को क्लास है 9 से 11. ऑल्टरनेट डेज को क्लास होती है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे. ठीक है, बिल्कुल आओ यार. बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं उसके अंदर, और बेसिक से एडवांस तक ले जा रहा हूँ, और सबसे मेन टॉपिक से वो सब करवा रहा हूँ मैं. ठीक है, जिसमें से जनरली 95% ऑफ द सेट्स आए हुए इन द लास्ट 4 to 5 years. तो वही टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस रख रहा हूँ. 90 to 95% मतलब. बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, यू कैन आस्क मी ऑल योर क्वेश्चंस. ठीक है. So yes, coming back to what I was saying, right? If a student is diligent enough, disciplined enough, driven enough, push की जरूरत नहीं होती है, तो मैं बोलते हैं यार आप जॉब नहीं करो. Why? Because CAT is one of the most important things for your career right now. अब कौन से कॉलेज से एमबीए करते हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपने डिसाइड कर लिया आपको एमबीए करना है, ठीक है, if you've decided you want to do an MBA, then CAT is the most important thing for you right now in the near future, right? You have to do very well, exceedingly well in the CAT. स्टिल फिर मैं क्यों बोल रहा हूँ जॉब करने को, है ना? फिर तो बिना जॉब करके करोगे कि इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट? तो मैं उन बच्चों को बोल रहा हूँ कि आप जॉब नहीं लो जिनका मुझे पता है कि यार जॉब जब वो नहीं करेंगे, वो सिर्फ दिन भर घर बैठेंगे तो पढ़ाई करेंगे, वो और कुछ नहीं करेंगे. पर मैंने देखा है कि ऐसे बाकी बच्चों को मैं बोलूँ ना यार आप जॉब नहीं करो, आप कैट की प्रेप करो, तो ना जॉब करते ना कैट की प्रेप करते. फुल टाइम मजा मस्ती चलता है ना, घर पे बैठ के चिल करते, मजा मस्ती करते. आज आज जो पढ़ाई करनी है, जो टारगेट का, और ये आप लोग की प्रॉब्लम नहीं है, मैं जब स्टूडेंट था मेरी भी प्रॉब्लम थी. ठीक है, मैं भी आज का कल पे डालता था, कल का परसों पे डालता था, परसों का तरसों पे डालता था, और ऐसे करते 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 हफ्ते हफ्ते निकल जाते थे. जो चीज मैं एक दिन में कर सकता था वो मैं 15 दिन में करता था. और फिर जब 2 महीने बचते थे, जब अक्टूबर का महीना आता था, तब एकदम पागल हो जाते थे, अरे बाप रे इतना कुछ बचा हुआ है. और फिर तब इधर उधर भागते, अलग अलग लोगों के पास जाते, सर ब्लेसिंग दे दो, हेल्प कर दो, बैठ जाओ मेरे साथ, मेरे लिए अलग स्पेशल क्लास ले लो, 1-to-1 सेशन. सर आप कितना पैसा लोगे, मैं आपको कुछ भी देना हो तैयार हूँ, बस मेरा कैट निकलवा दो. कुछ नहीं हो सकता वो केस में, राइट? एंड हेंस प्रॉब्लम. और फिर आपको गिल्ट फील होता है यार मैंने जॉब भी नहीं की और मेरी पढ़ाई भी नहीं हुई, और फिर आप वो गिल्ट में बस आखिरी 2 महीने भी आप उसी में घूमते रहते हो, आप कोई पढ़ाई कर नहीं पाते हो, और तकलीफ हो जाती है लाइफ में, राइट? सो अगर मुझे आप में डिसिप्लिन, ड्राइव, ये सारी चीजें दिखेगी तो मैं आपको बोलूंगा यार आप जॉब नहीं करोगे चलेगा. मैं इसे आ रहा हूँ आपके सवाल पे, आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टू दैट, डोंट वरी. ठीक है, वी हैव इनफ टाइम इन द क्लास है, अभी और 25 मिनट बाकी है. ठीक है, तो धीरे धीरे आता हूँ. सुशांत, वेलकम टू द क्लास. ठीक है, संकल्प, आई होप आपको मेरी ये क्लास मिल गई हो, जो मैं बैच की बात कर रहा हूँ उसमें आ जाया करो. एलआरडीआई उसमें पढ़ा रहा हूँ मैं. सोच रहा हूँ सिर्फ एलआरडीआई का ही टीचर बन जाऊँ, कॉन्स वगैरह छोड़ दूँ, क्योंकि आजकल मैं उतना ज़्यादा टाइम अपनी टीचिंग पे डाल नहीं रहा हूँ. तो 2 सेक्शन पे फोकस करने की जगह एक ही पे फोकस करूँ स्टूडेंट्स के लिए. ठीक है, वो देखते हैं, विल सी, विल फिगर दैट आउट. मेरे को एक बस एक क्वांट्स का एक कोर्स करना है, मुझे अरिथमेटिक बस सिखाना है, बाकी तो मैंने ऑलरेडी एक एक राउंड कर ही लिया हर एक सब्जेक्ट का. चलिए देखेंगे वो. अभी वापस इधर आ जाते हैं. तो मैं ये बोल रहा था कि भाई
जॉब नहीं लोगे तो बस ये इंश्योर करो कि आप में वो ड्राइव है। अगर आप में वो ड्राइव नहीं है तो फिर यार डेफिनेटली गो विद अ जॉब। आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आप पैसा कमाओगे, ये सारी चीजें आपको हेल्प करने वाली है आगे जाके, ठीक है। और वर्क एक्सपीरियंस का एक फैक्टर भी रहता है। इट डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ वेटेज। मोस्ट ऑफ द आईएम्स देयर इज 5 to 10% वेटेज ऑन दिस। और उसमें भी 3-3 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आपको ये पूरा मिलेगा। 1 साल के एक्सपीरियंस में आपको ये ज्यादा इसमें कुछ मिलेगा नहीं, पर कुछ तो मिलेगा, ठीक है। तो मैं तो स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करता हूँ कि यार आप वर्क एक्सपीरियंस ले लो, वो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। इवन जो डिलीजेंट भी होते हैं ना, उनको भी मैं पहले ये बोलता हूँ वर्क एक्सपीरियंस लो। पर वो अगर बहुत ज्यादा ड्रिवन दिखते हैं, उनको बहुत ज्यादा वो लगता है कि यार जॉब नहीं लूंगा या लूंगी और मैं अच्छे से पढ़ाई कर लूंगा या कर लूंगी, मैं बोलता हूँ कि ठीक है यार, फिर आप नहीं लोगे तो भी चलेगा। और एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, राइट। सो इफ यू ग्रेजुएटेड दिस ईयर, ठीक है, तो जनरली ग्रेजुएशन आपके मई जून टाइप वाले महीनों में होता है। मैं ये एडवाइस करता हूँ that try taking up a job but after 3 odd months, 3 or more than 3। मतलब आइडियल सिनारियो तो मैं बोलूंगा दिसंबर से अपनी जॉइनिंग शुरू करवाओ, लेकिन उतना आपके हाथ में भी नहीं होगा। आपके अगर कैंपस पे प्लेसमेंट लगा है तो एटलीस्ट 4-5 महीने तो आप नहीं रुकवा सकते ऑर्गेनाइजेशन को। तो एटलीस्ट ट्राई की ऐसी जगह आप जॉब लो जहां आपकी ज्वाइनिंग अगस्त या सितंबर में हो, तो आपको इनफ टाइम मिले कि आप अपनी प्रिपरेशन चालू कर सको और प्रिपरेशन को एक अच्छा मोमेंटम दे सको, आपकी एक डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन हो जाए, राइट। तो ये सीन है, ठीक है जी। एवरीवन एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, बस मैं लॉजिक बता रहा हूँ। कहीं ना कहीं हमको भी इंटरनली पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, जस्ट दैट एक कभी कभी एश्योरेंस की जरूरत होती है, कभी कभी कोई बोलता है तो ज्यादा चमक में आता है। शुभम, वेलकम टू द क्लास, ठीक है। ऑल गुड ओवर हियर, एवरीवन गुड? एनीवन हैज एनी फॉलो अप क्वेश्चंस प्लीज आस्क मी इन द चैट, अदरवाइज गिव मी अ थम्स अप। इफ आई गेट थम्स अप्स तो मैं आप लोगों के सवाल लेना शुरू करूंगा एक एक करके। मेरे पास 2 लोग के सवाल, एक मनीषा है, एक मुदित है, ठीक है। थम्स अप्स आ चुके कई सारे लोगों के, ठीक है। मनीषा, cool. Aditya, I have your question as well. I will take them one by one. First, let me consider Manisha's question. Can we prepare for CAT and bank PO exams at the same time? है ना, यही क्वेश्चन है मनीषा आपका कि क्या आप दोनों के लिए एक साथ प्रिपेयर कर सकते हो? शॉर्ट आंसर इज यस, ठीक है। लॉन्ग आंसर इज कि अगर आप अपने मन में सोच लो कि नहीं हो सकता, अगर आपके मन में है कि यार ये नहीं हो सकता, तो फिर आप दोनों में से कोई एक प्रेफरेंस सिलेक्ट कर लो और उसी के लिए प्रिपेयर करो, दूसरे एग्जाम बस जाके दो। सीन क्या है ना, कोर्स दोनों में सेम है, कोर्स में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत 19-20 का देखो फर्क होगा, पर अदरवाइज कोर्स इज सेम इन बोथ द एग्जाम्स, ठीक है। दोनों एग्जाम का कोर्स सेम है, द ओनली डिफरेंस इज द एग्जाम पैटर्न, द ईज, द डिफिकल्टी लेवल इन द एग्जाम, राइट। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा फर्क पड़ती है। हाँ देखो, कोर्स मतलब मैं, जब आपने सवाल पूछा मनीषा, तो मैं जो सब्जेक्ट्स कॉमन सब्जेक्ट्स हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो कॉमन नहीं है उसके लिए तो देखो आपको अलग से प्रिपेयर करना ही पड़ेगा मनीषा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो इसीलिए आपको फिर ये प्रेफरेंस सिलेक्ट करनी पड़ेगी। मान लो कि अगर आपका बैंक पीओ पहला प्रेफरेंस है तो आप जीए के लिए अलग से प्रिपेयर करो। अगर आपका कैट पहला प्रेफरेंस है तो जीए भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं दो, एग्जाम के फिर 2 दिन 4 दिन पहले करो, जय माता दी बोल के जाओ, जैसा गया देखी जाएगी, समझ रहे हो। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि प्रेफरेंस सिलेक्ट कर लो और फिर जो सेकंड प्रेफरेंस वाली एग्जाम है उसमें इतना ज्यादा आप टेंशन नहीं, वो बस आप दे आओ। कई बार हमने देखा है स्टूडेंट्स कैट के लिए प्रिपेयर करते हैं और साथ में फिर वो लोग बैंक पीओ की भी एग्जाम दे देते हैं, जीआरई, जी मैट, बाकी भी एंट्रेंस एग्जाम दे देते हैं, और कई बार देखा कैट में उतना अच्छा नहीं करते, बाकी एग्जाम्स में एक्सीडिंगली वेल दे परफॉर्म एंड हेंस ऑटोमेटिकली दे गेट गुड ऑप्शंस ओवर देयर एज वेल, राइट। महाराष्ट्र सीईटी ले लो फॉर एग्जांपल, मेरे कई सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं पहले लोकली पढ़ाता था इधर बॉम्बे में, तो मेरे कई सारे स्टूडेंट्स प्रिपेयर तो कैट के लिए करते थे,
लेकिन महाराष्ट्र सीईटी में कई सारे टॉपर वॉपर भी बन जाते थे और कैट में भले उतने अच्छे मार्क्स नहीं आते थे उनके। क्यों? क्योंकि कोर्स दोनों जगह सेम है, आपका बस पैटर्न थोड़ा अलग है, सवाल की डिफिकल्टी थोड़ी अलग है। आपके अगर बेसिक्स क्लियर है, 2-4 मॉक्स दोगे तो ऑटोमेटिकली दूसरी पैटर्न वाली एग्जाम भी आप सही कर लोगे। शुभम, आपके सवाल पे भी आता हूं। तो मनीषा, क्या मेरा जो भी मेरा व्यू है या जो भी मेरा जवाब है, डज इट हेल्प यू विथ सम मोर क्लैरिटी? यस, परफेक्ट मनीषा, परफेक्ट। ठीक है। एक सेकंड ना गाइस। हाँ जी मनीषा, वही सही रहेगा। आप कैट पे फोकस करो और बैंक के मॉक्स दो। दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग फॉर यू, इज व्हाट आई आल्सो फील। परफेक्ट है, सही सोच रहे हो। ठीक है मनीषा, इज दैट फाइन? यार आई डोंट नो आजकल ये मेरे कैमरे में क्या इशू हो रहा है, बैकग्राउंड में इतना नॉइस क्यों आ रहा है। लेट मी जस्ट सी इफ आई कैन एडजस्ट समथिंग ओवर हियर। स्लाइटली बेटर। ठीक है मनीषा, अगर आपका सवाल हो गया, आपका रिस्पॉन्स आना बंद हो गया, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। आदित्य, आई यू स्टिल देयर इन द क्लास? परफेक्ट। आदित्य, आपका थोड़ा मुझे बैकग्राउंड बताओगे? आपके 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, ग्रेजुएशन के मार्क्स, कौन सा सब्जेक्ट, वर्क एक्सपीरियंस इफ एनी? Also, 5 there are 6 months to the CAT, right? CAT is generally end of November. Last Sunday of November is when CAT is there. So we have 6 months to go till CAT. Nine point eight GPA in 10th, 88% in 12th, 8.7 in college. बढ़िया है। और कौन सा सब्जेक्ट था आपका कॉलेज में, ग्रेजुएशन में? CS, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। कौन से कॉलेज से आते थे? 7 months वर्क एक्सपीरियंस। कंप्यूटर साइंस से हो तो बढ़िया है यार। थोड़ा LR वगैरह तो आपका काफी ऑलरेडी डिसेंट लेवल पे स्ट्रॉन्ग रहेगा, होपफुली। जरूरी नहीं है कि वो हो, पर आई एम होपिंग कि वो हो। मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी इंदौर, ठीक है। और अभी आप काम कहाँ कर रहे हो, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में है वर्किंग? यार ये मेरी स्क्रीन ऐसे क्यों हो रही है? ठीक है, मैं ऐसे बैठ रहा हूँ तो सही हो जाएगी। ठीक है, तो मैं ऐसे ही बैठ रहा हूँ। गाइस, एक और अनाउंसमेंट बस कर दूँ, आज एक और क्लास है 8 बजे, कोडिटेशन सिस्टम्स पुणे। ठीक है, पुणे में। हम्म, एक और क्लास है मेरी अभी 8 बजे भी, उसमें भी आइएगा। उसमें 20 स्कूल्स कैसे चूज करना, हम उसके ऊपर बात करेंगे। बट एनीवेज, चलिए आदित्य, अब आपके सवाल पे मैं आ जाता हूँ। आर आई एम अज्यूमिंग यू मेंट 6 months, आर दी 6 months which remain, आर दे enough? Generally आदित्य, 2.5 to 3 months are enough to do well in the CAT. However, this requires lots of discipline and hard work.
ठीक है, which generally a lot of us lack, right? Otherwise I've seen examples. There's a friend of mine, उसने 2.5 महीने जम के प्रिपेयर किया था, रोज 6-6 घंटे मेहनत करता था, मेरे ही बैच का था, उसके 99.98 परसेंटाइल आए थे कैट पे, उसने खूब सारे मॉक्स दिए थे, बहुत पहले तो उसने बेसिक्स पे जल्दी जल्दी उसने फोकस करके काफी कुछ समझ लिया और फिर वो मॉक्स के थ्रू अपनी प्रिपरेशन करता था आखिरी 2.5 से 3 महीने। मेरी एक स्टूडेंट थी लास्ट ईयर, शी स्टार्टेड हर प्रेप समवेयर इन अर्ली अक्टूबर, ठीक है, she's gotten into MDI, right? She got a 93 odd percentile in CAT and very bad in math, very bad in math. Like that is one of the I'm proudest, about that one case, right? I mean, there are a few such cases that have been there in my teaching life. This is one of the most proudest case of mine, right? कि जहाँ 2 महीने में एक स्टूडेंट जिसको मैथ बिल्कुल नहीं, जो ऑलमोस्ट जीरो, पहला पहला टेस्ट दिया नेगेटिव मार्क्स आए मैथ में, राइट? ऐसी स्टूडेंट ने 93 परसेंटाइल ओवरऑल लाया एंड वेंट टू एमडीआई गुड़गांव, राइट? आई मीन शी इज गोइंग टू जॉइन एमडीआई इन द नेक्स्ट मंथ और सो, राइट? सो दैट इज द सीन। सो ऐसा नहीं है कि 6 महीने कम है, 2.5 से 3 महीने में अगर आप 6 आवर्स अ डे डालोगे आप कर सकते हो। आप इसको रिवर्स कर दो, ये 6 इधर आ गया तो 2.5 to 3 इधर आ जाता है। आप अगर अभी से चालू कर रहे हो, आप 2.5 से 3 घंटे दिन के डालोगे, आपका काम हो जाना चाहिए। जॉब के साथ 2.5-3 घंटे आपको निकालने आने चाहिए। आई थिंक विद द जॉब पॉसिबल यार। जॉब आपसे कितना 10 घंटा 12 घंटा मांगता होगा आपके, अगर आप 8 घंटे भी सोते हो, जो आजकल लोग सोते नहीं है, आजकल 6 घंटे का एवरेज है जहाँ तक मैं समझता हूँ, ठीक है। चलो आपने 8 घंटे स्लीप में दे दिया, चलो यार आपकी जॉब बहुत डिमांडिंग है, 12 घंटे आप जॉब में डाल रहे हो, आपके पास अभी भी दिन के 4 घंटे बाकी, ठीक है। 4 में से चलो आपने 1 घंटा खाना पीना नहाना धोना बाकी सारे कामों में निकाल लिया, अगर आप डिसिप्लिन रख के करोगे तो आप 3 घंटा मेहनत कर सकते हो। मेरे हिसाब से अगर आप जॉब के साथ करते हो, बेस्ट तरीका पता है क्या होता है? आप दिन का टाइम फिक्स कर लो। आपको इनिशियली बहुत तकलीफ आएगी और आपका फोकस नहीं लगेगा, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, लेकिन यू कीप गोइंग एट इट। फिक्स अ टाइम इन द डे, मान लो 3 घंटे आपको करना है, तो सुबह आपने मान लीजिए अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो तो आपने 6 AM to 9 AM फिक्स कर लिया कि यार ये टाइम पे मैं कैट की प्रिपरेशन करूंगा। अगर आप रात के पर्सन हो तो आपने मान लो 9 से 12 का टाइम फिक्स कर लिया कि यार ये टाइम पे मैं PM नहीं, सॉरी ये AM होना चाहिए। मान लो आपने फिक्स कर लिया कि यार ये टाइम पे मैं अपनी कैट की प्रिपरेशन करूंगा, बस फिर सॉर्टेड है। आपको बस ये टाइम पे बैठ के कैट की प्रिपरेशन करनी है अपनी, और कुछ है ही नहीं सीन। समझ रहे हो आप लोग? ये कर लिया, आपका काम हो गया। आपको बस ये 3 घंटे बस बैठ के आपको अगले 6 महीने रोज काम करना है, और आपके पास जॉब भी है भले ही, तो भी आपके पास वीकेंड तो है। अगर किसी दिन आप मान लो अपने ये टाइम पे कोई आपकी फैमिली कमिटमेंट है, कहीं बाहर जाना है, कहीं मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कुछ भी हो गया, तो भी आप ये टाइम पे नहीं भी कर पाए तो आप वीकेंड पे आप 3 घंटे एक्स्ट्रा दे सकते हो, पर मेक श्योर कि आपका एवरेज 3 आवर्स पर डे आपका बन रहा है। समझ रहे हो आदित्य? सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपका जो सवाल था कि आर दी 6 months इनफ? डेफिनेटली इनफ। यार देखो आदित्य, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट अबाउट योर क्लासेस। मैंने एक चीज देखी है कि अनअकैडमी पे स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं जो क्लास टू क्लास हॉप करते रहते हैं। देखो क्लास में बैठना, अटेंड करना, सीखना, समझना, प्रॉब्लम सॉल्विंग सब कुछ करना बहुत आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन आपकी पूरी प्रिपरेशन ही क्लासेस में नहीं हो सकती। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ कंपोनेंट ऑफ सेल्फ स्टडी यू हैव टू डू। माय 3 क्लासेस वाला थिंग इज कि इफ यू सिलेक्ट योर क्लासेस केयरफुली, आप एक ही बैच करते हो पूरा स्टार्ट से फिनिश, then that class also is included in the 3 hours over, ठीक है। पर क्या होता है ना, फिर आप क्या करते हो, आप जबरदस्ती क्लासेस लगाते हो जानबूझ के, आप एक ही चीज आप 2 अलग अलग बैच में पढ़ते हो, आप सेम ही सेम चीज रिपीट करते रहते हो, तो वो नहीं हो सकता। आपको एकदम स्मार्टली करना पड़ेगा, आपको जो भी करना, राइट। सो आई एम नॉट सेइंग आप क्लासेस के लिए आप अलग से टाइम निकालो, मैं तो बोल रहा हूँ आप ये 3 घंटे में अपनी क्लासेस भी निकालो, स्मार्टली करो, सब कुछ हो जाएगा आपका। अब आपको अगर अरिथमेटिक आता है अच्छे से, आप फिर भी अरिथमेटिक की क्लासेस लगाओगे तो फिर यार उसका कोई फायदा नहीं है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर, ठीक है। नेहा वेलकम टू द क्लास। आप ही देखो ना यार, 6 महीने में 180 दिन है, 180 दिन में अगर आपने 3-3 घंटे लगाए, 540 घंटे आपके पास, ठीक है। आपके अगर आप सारे कोर्सेज मिला भी लो ना, क्वांट्स, एलआरडीआई, वर्बिल के,
मुझे नहीं लगता वो सारा कुछ मिला के 150 से ज्यादा घंटे आपको लगेंगे, ठीक है। या चलो 250 कर लो यार, फिर भी आपके पास बहुत सारा टाइम बचता है सेल्फ स्टडी के लिए, मॉक्स देने के लिए और सारी चीजें। पर अगर आपने डिलीजेंटली रोज के 3 चालू तो करो यार, इससे आप सोचते हो कि यार 3 घंटे करे नहीं करे ये सारी चीजों में ही आप चालू भी नहीं करते हो, आप उधर ही रुक जाते हो, और आप एक एक दिन जो वेस्ट कर रहे हो, एक एक दिन आपका जो एक्स्ट्रा लग रहा है यू आर लूजिंग आउट ऑन अ लॉट, और आपके दिमाग में प्रेशर बन रहा है, प्रेशर बन रहा है तो आप आगे भी आप मेहनत नहीं कर पाओगे, फोकस नहीं कर पाओगे, काम नहीं कर पाओगे। So Aditya, start with these 3 hours. देखो आप जितना भी टाइम डालोगे there's always scope to do better and more. तो 3 घंटे भी आप रोज के डालोगे तो कभी आपको 4 घंटे भी मतलब फीजेबल रहेगा तो आप दो ना यार, आपके पास जब भी फीजिबिलिटी रहेगी आप और टाइम दो, पर मिनिमम 3 घंटा तो आपको डालना ही है। और 3 घंटा डालोगे, मेरी गारंटी है 6 महीना 3 घंटा डालोगे, सही से डालोगे, आप डेफिनेटली अच्छा करने वाले हो कैट में, ठीक है। Aditya, is this fine for you? Mudit, are you still there in the class? आई थिंक सबके सवाल हो चुके हैं इधर। आदित्य आपका भी मैंने सवाल का जवाब दे दिया, मनीषा का भी दे दिया, संकल्प का भी दे दिया। एनी अदर क्वेश्चन एनीवन एल्स हैज फ्रॉम मी? मुदित आप हो? नेहा, वेलकम टू द क्लास। शुभम आपका क्या सवाल है, बताइए। 7 मंथ का वर्क एक्स है टिल में, ये कोई बैड इंप्रेशन डालेगा क्या कैट में? शुभम अगेन शॉर्ट आंसर नो। मतलब मैं समझ नहीं रहा हूँ कि बैड इंप्रेशन आप क्यों बोल रहे हो, ऐसा क्या इश्यू है जो बैड इंप्रेशन? आपने जॉब छोड़ दी है क्या, आप ऐसा बोल रहे हो क्या? अच्छा नहीं, फिर भी वो नहीं डालता है मतलब। यार देखो इंप्रेशन की बात करते हैं एक बार। इफ लेफ्ट जॉब, ठीक है, हाउ डज इट अफेक्ट? ये आपका सवाल है ना शुभम? इसको मैं 2 फेज में डिवाइड कर देता हूँ। एक होता है प्री इंटरव्यू, बेसिकली इंटरव्यू कॉल्स के लिए, ठीक है, और एक होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में कितना आपको अफेक्ट करेगा, ठीक है, तो ये 2 चीज है। गाइस एक सेकंड, आई जस्ट बी बैक, जस्ट फॉलो। Sorry guys. So I was saying 2 phases basically, right? One is your pre-interview, which is basically उधर क्या एक decision making होता है इंटरव्यू कॉल, कि भाई ये स्टूडेंट को मुझे इंटरव्यू कॉल देना है या नहीं देना। और दूसरा इंटरव्यू जहाँ से डिसीजन मेकिंग होता है कि भाई मुझे एडमिशन के लिए कॉल देना है नहीं देना, ठीक है। अब इधर इंप्रेशन वाइज कुछ है ही नहीं, इधर ऑब्जेक्टिव कॉल है, तो इंप्रेशन कोई बिल्ड ही नहीं करता, ठीक है। तो इनफैक्ट इधर मैं क्रॉस के जगह इधर बोल देता हूँ कि यार इधर तो मतलब इंप्रेशन के कोई पॉइंट्स ही नहीं है। हाँ, इधर ऑब्जेक्टिव आपके वर्क एक्स के कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, वो थोड़ा सा अफेक्ट हो जाता है ना, वो थोड़ा आपका बेटर हो सकता था अगर आपके पास और 4-6 महीने वर्क एक्सपीरियंस होता। इज दैट अ बिग फैक्टर? नो, इसलिए मैंने छोटा क्रॉस बनाया। शुभम यहां तक आपको समझा?
तो ये वाला आपको पता है ना, ये रिस्क आपको पता है ना, आपने जॉब छोड़ी जब, कि आपके जो वर्क एक्सपीरियंस 7 मंथ्स है वो 12-13 मंथ्स भी हो सकता था, लेकिन वो 12-13 मंथ्स भी हो गया, आपको कोई ज्यादा इतना बड़ा फायदा नहीं होता, 1-2% का चेंज आता, पर बहुत ज्यादा बड़ा चेंज नहीं आता। विथ मी ऑन दिस शुभम। अब बताते हैं मेन चीज पे, इंप्रेशन इधर बनता है, ठीक है। अब इसमें इंप्रेशन जो बनेगा ना, इसमें भी वर्क एक्स के भी कुछ पॉइंट्स रहेंगे, कुछ कुछ जगहों पे, सब जगहों पे नहीं, लेकिन अगेन अ वेरी स्मॉल फैक्टर, ठीक है। तो छोटा क्रॉस मारता हूँ। अब जो इंप्रेशन है, इधर मैं वापस बोलूंगा कि इधर अफेक्ट नहीं करता, पर इधर फिर भी एक रेंज है, आपका बहुत बड़ा टिक भी हो सकता है और बहुत बड़ा क्रॉस भी हो सकता है, ठीक है। इधर वो स्कोप नहीं है, इधर फर्क ही नहीं पड़ता। इधर ऐसा है कि आपसे पूछेंगे कि यार आपने जॉब क्यों छोड़ी, क्या रीजन था जो आपने जॉब छोड़ी। आप अगर उसको जस्टिफाई कर सकते हो, आप उनको समझा सकते हो, तो वो टिक की तरफ चले जाते हैं। और अगर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, आप उसको समझा नहीं सकते हो, तो क्रॉस की तरफ चले जाते हैं। अब आप जब जॉब छोड़ रहे हो, देखो लाइफ में हम कभी भी कोई डिसीजन लेते हैं तो हम अपनी भलाई के लिए लेते हैं, बहुत कम लोग होंगे ऐसे जो अपनी भलाई के लिए डिसीजन नहीं लेंगे, पर कॉन्शियसली जब भी हम डिसीजन लेते हैं हम ये सोच के लेते हैं यार ये मेरे को कैसे फायदा करेगा। तो आपने जब डिसीजन लिया जॉब छोड़ने का, आपने सोचा कि यार ये मेरा फायदा ही करने वाला है, इसलिए आपने जॉब छोड़ी, ठीक है। अब उसके बाद हो सकता है कि वो जॉब छोड़ने का डिसीजन सही नहीं था, आपको बाद में पता चला कि नहीं यार वो जॉब छोड़ने का डिसीजन सही नहीं था, मैंने जॉब फालतू की छोड़ी, मुझे जॉब कंटिन्यू करनी चाहिए थी। तो आपको क्या बोलना है इंटरव्यूअर को जब वो पूछता है कि आपने जॉब क्यों छोड़ी, तो आपको बताना है कि यार ये मैंने सोच के छोड़ी थी, लेकिन हाँ बाद में मैंने रियलाइज किया कि नहीं ये मेरा गलत डिसीजन था। आप अगर अपना डिसीजन अगर आपका गलत रहा है और आपने एक्सेप्ट किया उधर कि हाँ मेरा डिसीजन गलत था, आप जनरली यही साइड जाओगे, ठीक है। हाँ अगर डिसीजन एकदम ही इरैशनल तरीके से लिया गया था, तो हो सकता है आप इधर जा सकते हो, लेकिन वो भी अगर आपने बोल दिया यार कि मैं इरैशनल हो गया था, मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, मेरा दिमाग खराब हो गया था, जो भी था, तो हो सकता है उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, टिकी होगा, ठीक है। और कई बार ये होता है कि आपने कुछ सोच के डिसीजन लिया आपकी भलाई के लिए और कहीं ना कहीं आप उस पर खरे भी उतर जाते हो, कहीं ना कहीं वो जस्टिफाई हो जाता है, तो बस आपको वही बताना है कि मैंने ये सोच के डिसीजन लिया था, एंड द फैक्ट दैट आई हैव जस्टिफाइड दैट डिसीजन मींस दैट इट वाज द राइट डिसीजन। आपको एक्सप्लेन करना है, अगर वो आप ढंग से एक्सप्लेन कर दोगे इंटरव्यू के अंदर, तो अगेन इट विल काउंट एज अ बिग टिक। शुभम समझ में आया आपको ये? तो डज इट डायरेक्टली अफेक्ट अगर आपने जॉब छोड़ा है? नो, डायरेक्टली वो अफेक्ट नहीं करता है, इनडायरेक्टली यस वो अफेक्ट करेगा आपको। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा गया उसके बारे में, डिपेंडिंग कि आप क्या जवाब देते हो, इनडायरेक्ट थोड़ा सा इफेक्ट रहेगा उसका, पर डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं है आपका जो इम्प्रेशन बन रहा है उसके ऊपर। हाँ आपके जो वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स थोड़े कम ज्यादा हो सकते हैं अगर आप जॉब करो या ना करो उसके वजह से। आर यू ऑन द सेम पेज शुभम ओवर हियर? आई नीड अ रिस्पॉन्स, ठीक है। सो आई होप एवरीथिंग गुड ओवर हियर नाउ विथ यू। चलिए then we are done with the time of the class guys, and I've solved all questions. If you still have more questions, there's another class at 8 p.m. मैंने 8 p.m को एक और क्लास रखी हुई है, आप उधर आके भी मुझसे पूछ सकते हो। क्लास का टाइटल मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो मैं सारे क्वेश्चंस उधर एंटरटेन करूंगा, पर मैं फिर भी क्लास का टाइटल बता देता हूँ, व्हाट बी स्कूल टू चूज, ठीक है। तो हम लाइव थोड़ा बहुत रिसर्च भी कर लेंगे कौन सा बी स्कूल क्या क्राइटेरिया देखता है। लास्ट ईयर ऐसे बहुत सेशंस करता था, लेकिन बी स्कूल्स के भी क्राइटेरिया काफी बदले इन द लास्ट 1 ईयर, ठीक है। तो हम वो देखेंगे तब। नेहा आपने हैंड रेस किया हुआ है, पर यार ये क्लास का टाइम खत्म होने और 10 मिनट में एक और क्लास चालू हो रही है, तो क्या आप वो क्लास में आओगे? 8 p.m वाले क्लास में आ जाओ, आप पहले ही हैंड रेस कर दीजिए, मैं आपकी क्वेरी एकदम पहले ले लूंगा क्लास में। नेहा, इज दैट फाइन फॉर यू?
ठीक है, चलिए तो 8 बजे मिलते हैं, इन 10 minutes we'll meet again. चलिए, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय.